विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संसाधनों के निजीकरण करने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तृणमूल की तरफ से कहा गया कि किसी भी हाल में सरकारी संस्थानों को निजीकरण होने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्राइवेटाइजेशन और कर्मचारियों के ऊपर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित LIC ऑफिस के सामने तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। मंगलवार धरना प्रदर्शन के दौरान INTTUC के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़ियाल और अन्य नेतागण उपस्थित थे। INTTUC जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सब कुछ बेच रही है। राज्य की मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार LIC जैसे लाभजनक संस्था को निजी हाथों में सौंप देना चाहती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि किसी भी हाल में तृणमूल कांग्रेस नहीं होने देगी। ট্রান্সপারেন্সি নাই। আমরা বিজেপির কোন বন্ধু যদি আছেন আপনারা শুনুন, আমরা দাবি করছি যে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে যে টাকা নরেন্দ্র মোদী সরকার তুলছেন তিনি কেন প্রকাশ করছেন না? ওই টাকায় কোথায় তিনি খরচ করেছেন? ইতিমধ্যে কয়েকটা শিল্পকে বেসরকারীকরণের হাত থেকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি। আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখেছি অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টকে আমরা ধর্ণা দিয়ে 85 দিন বসেছিলাম, আজকে কেউ টেন্ডার দিতে সাহস করেনি। তাই LIC এবং ব্যাংকের বন্ধুদের কাছে আবেদন করবো, আপনারা ভয় খাবেন না। আপনাদের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, INTTUC ইউনিয়ন আছে, আমরা আছি। সকলকে আহ্বান জানিয়ে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, মহামারী মানুষ জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, INTTUC। মাননীয় দুর্গাপুর 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উজ্জ্বল মহাশয়, আমাদের 3 নম্বর ব্লক যে বেচারা সব বিক্রি করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে আর কিছু রাখবে না, ওরা সব আদানি আম্বানিদেরকে ওরা বিক্রি করে দিয়ে দেশটা। আমরা যারা পশ্চিমবাংলায় বাস করছি, যারা অহরহ লড়াই করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, আজকে ভ্যাকসিন নেই, লড়াই করতে হবে। আজকে জিনিসপত্রের দাম মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, ব্যাংক বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, LICও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, রেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এগুলো আজকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পরশুদিন আপনারা সংবাদপত্র এবং সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের কাছে একটা স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে LIC এবং ব্যাংক এই দুটো সংস্থাকে বিক্রি করতে হবে। এর আগেও আমরা বলেছি, বিভিন্ন জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি, আমাদের জননেত্রী ভারতবর্ষের মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কখনো দিল্লির রাজপথে দাঁড়িয়ে, কখনো হচ্ছে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য সভায় তিনি প্রতিবাদ করেছেন ভারতবর্ষের সমস্ত পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলোকে বিক্রি করতে। আমরা যারা দুর্গাপুরের সচেতন নাগরিক, আমরা দেখেছি যে কোল সেক্টরকে বিক্রি করে দেওয়ার একটা পলিটিক্যাল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, তার হেড অফিস RMD ডিভিশন, তার হেড অফিস কলকাতা থেকে রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সেটাকে করে নিচ্ছেন এবং সেই LIC মতো লাভজনক সংস্থাকে বিক্রি করে দিতে চাইছে, ব্যাংক বেসরকারি করতে চাইছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটাইজেশন এবং হচ্ছে যে বিলগ্নীকরণ, এই তিনটে প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। पांडेश्वर के हरिपुर बाजार स्थित नेशनल हाईवे 60 पर बालू से लदे ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक डोबराना गांव निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही पांडेश्वर थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले को शांत करवाया। पांडेश्वर थाना अंतर्गत हरिपुर बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर मंगलवार की सुबह 10 बजे एक बालू के ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान डोबराना गांव निवासी अमित कुमार लॉ के रूप में हुई है।
मृतक हरिपुर स्थित एक हार्डवेयर दुकान में कार्यरत था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बालू ट्रक जामुड़िया मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के सहारे बहुला मार्ग की ओर आ रहा था। हरिपुर शिव मंदिर के पास स्कूटी चालक बालू ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक पैसे जमा करने बैंक जा रहा था, जहां पीछे से आ रही एक बालू लदी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर दे मारी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ा और आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पाकर बनबहाल फाड़ी और पांडेश्वर थाना दोनों की पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। এখন দেখছে না, না নেতারা দেখছে না, এখানে সমস্ত মানুষ দেখছে এই ঘটনাটা। আজকে এই জন্য তো অ্যাক্সিডেন্ট, কি জন্য অ্যাক্সিডেন্ট? রোডে জাম, এত বড় মার্কেটের মধ্যে জাম, রোডটা ক্লিয়ার করে না, রোডে সাইডে সাইডে পার্কিং করে দিছে, দেখছে না রোডটা ক্লিয়ার করার জন্য। কারা দেখবে এইগুলো? তলা বাজি করে আর টাকা লিবে গাড়িওয়ালা। আমার নাম অজয় রায়। ঘটনা তো দেখুন, স্পটে তো আমি দেখিনি, আমি এসে দেখছি লাশ পড়ে আছে, স্লিপ করে গেছে, স্কিচ করে গেছে, স্কিচ করে যে ব্যাংকে পাঠিয়েছিলাম। আচ্ছা ব্যাংকে টাকা জমা করতে, যে টাকা জমা করতে আসি সে দেখছি রাস্তাতেও পড়ে আছে। যে শুনলাম যে এরকম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেন এসেছি। কি নাম বদল? অমিত কুমার লোক, বয়সটা কত? বয়স 49। কতদিন থেকে আপনার এখানে? আমার কাছে মোটামুটি 10 বছর হয়েছে, তো 12 বছর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुड़िया के चिचुड़िया गांव में सामुदायिक भवन में पश्चिम बर्धमान जिला चाइल्ड लाइन की तरफ से सैकड़ों बच्चों को पौष्टिक भोजन सामग्री दी गई, जिसका मुख्य मकसद था कि आने वाली तीसरी लहर के लिए बच्चों को ताकतवर बनाया जाए। जामुड़िया विधानसभा के चिचुड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत चिचुड़िया गांव सामुदायिक भवन में पश्चिम बर्धमान जिला चाइल्ड लाइन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस क्षेत्र के सैकड़ों परिवार के बच्चों को पौष्टिक भोजन सामग्री दी गई। पश्चिम बर्धमान जिला चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर संजय साहू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद कर्माध्यक्ष बकुल मंडल, चिचुड़िया ग्राम पंचायत प्रधान विश्वनाथ सांगुई उपस्थित रहे। इस संदर्भ में बकुल मंडल ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मकसद कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करना है। यहाँ 100 बच्चों को ड्राई भोजन सामग्री दी गई, जिससे बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में पश्चिम बर्धमान जिला चाइल्ड लाइन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर संजय साहू ने बताया कि आज के कार्यक्रम के दौरान 100 बच्चों को पौष्टिक भोजन सामग्री दी गई, जिससे बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत का विकास हो सके। ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড লাইন থেকে ঠিক আছে, আমরা সকলে জানি যে কোভিড প্যান্ডেমিকে পুষ্টি অভাব দিচ্ছে, এটার সঙ্গে লড়তে গেলে ভেতর থেকে ইমিউনিটি পাওয়ার দরকার। তো সেই একটা কমিউনিটি লাইন থেকে হচ্ছে, অনেক পলিটিক্যাল লাইন থেকে হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে হচ্ছে, অপারেট অথরাইজেশন একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে, যেটা কোঅর্ডিনেটর হচ্ছে আমাদের জেলাতে সঞ্জয় সাহু মহাশয়। আমরা সকলে আমার নিজের একটা পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত হয়েছি, আমার সন্ধ্যা প্রধান সাহেব আছেন, মেম্বাররাও ছিলেন, আমরা 100 জন বাচ্চা হাতে কিছু খাবার তুলে দিয়েছি। তো এটা টোটাল ক্রেডিটটা যাচ্ছে চাইল্ড লাইন ডিপার্টমেন্টকে। ওনারা চেয়েছেন লিস্ট, আমরা সহযোগিতা করেছি। বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা চাইছি এই কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বাচ্চাদেরকে অপুষ্টির শিকার না হয় এবং তাদের একটা হেলথ গ্রো করে, তারা কোভিডের সঙ্গে ভেতর থেকে তারা ফাইট করে এবং আগামী দিনে তারা সুস্থ জীবনযাপন পায়, তার একটা প্রচেষ্টা করছে। জিনিসগুলো কী কী ছিল? ওগুলো ছিল খুব ড্রাই ফ্রুট ছিল, মুড়ি ছিল, ছাতু, ছোলা, চিনি, বিস্কুট, তেল। কটা বাচ্চারা দেওয়া হলো? 100 জন বাচ্চারা দেওয়া হলো। আমার নাম বলে দিন। আমার নাম বকুল মণ্ডল, আমি কর্মদক্ষ শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ক্রীড়া। পশ্চিমবর্ধমান জেলা চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে অর্গানাইজ বাই জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জের আমাদের চিনচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে 100টা নিডি ফ্যামিলিকে ড্রাই ফ্রুট সাপোর্ট দেওয়া হলো, যেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ম্যাডাম ছিলেন, আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন, মহাশয় ছিলেন, সদস্য
মণ্ডলী ছিলেন, পৌরমণ্ডলী ছিলেন। আর আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে এই করোনা সিচুয়েশনে যে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, মানুষের সমস্যা হচ্ছে, এই সমস্যাগুলো ড্রাইভিংয়ের সমস্যা যেগুলো হচ্ছে সেই সমস্যাগুলোকে রুখতে আমরা কিছু সাপোর্ট দিয়েছি, যেটা হচ্ছে 100 জন ফ্যামিলিকে এই গ্রামে আমরা সাপোর্ট দিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের আজকে কর্মসূচি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সঞ্জয় সাহু, পশ্চিম বর্ধমান জেলা চাইল্ড লাইনের কোঅর্ডিনেটর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज पुलिस आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए शहर में माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस दौरान लोगों को मास्क भी बांटा जा रहा है ताकि लोग कोरोना के नियम को सही ढंग से पालन कर सके। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की जंग जीतने के बाद अब तीसरी लहर को हराने की बारी आ चुकी है। आने वाली तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को लोगों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसी के तहत राज्य भर में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मंगलवार रानीगंज शहर में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क बांटते हुए माइकिंग कर सलाह देते हुए देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है, जिसके लिए मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखना मुख्य रूप से शामिल है। अगर हम कोरोना के नियम को गंभीरता से मानते हैं तो हम इसे हराने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर बड़े इस बात को समझेंगे तो बच्चों को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित बुजीर बांध इलाके से 78 वर्षीय अजीत मजूमदार को बंद घर से बेहोश हालत में बरामद किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि अजीत घर में बीमार थे और इसकी वजह से वो शायद बेहोश हो गए थे। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित बुजीरबांध इलाके के रहने वाले अजीत मजूमदार को बंद घर से बेहोश अवस्था में बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अजीत मजूमदार के घर काम करने वाली बाई कल शाम घर साफ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी अजीत ने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा थक हार कर वो वापस अपने घर चली गई। मंगलवार सुबह भी उसने अजीत के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 1 घंटा बीतने के बावजूद भी अजीत ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से काम करने वाली बाई ने आसपास के लोगों को पूरी घटना बताई। दरवाजा ना खोलने की बात सुनकर लोगों ने इसकी सूचना रानीगंज थाने की पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंची और दरवाजा तोड़कर 78 वर्षीय अजीत मजूमदार को अचेत अवस्था में बरामद कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि अजीत काफी बीमार होने की वजह से बेहोश हो गए थे। কাল এলাম স্যার 4টার সময় এসে ডাক দিলাম, আওয়াজ পেলাম না, 5টা বেজে গেল, দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। আবার সকালে এলাম, দেখি গায়ে যদি খুলে গেটটা, তো খুললাম, ডাকলাম 1 ঘন্টা ধরে, তো ভিড় হয়ে গেলো সবাই। তো বলছে কী হলো রে? না দেখো মামা খুলছে না, অন্যদিন রাত দেয়, আস্তে আস্তে আসে, তো পেলাম না যখন খবর, তখন আমি পার্টির লোককে জানাতে গেলাম। আপনি কি করেছেন? হ্যাঁ, কি করছেন? কাজ করি, এই বাসন ধুই আর রুটি করেছি, আর কিছু না। আপনার কি নাম আছে? হ্যাঁ, নামটা কি আছে? ওর নামটা জানি না আমি। হ্যাঁ, অজিত অজিত মজুমদার। আপনার কি নাম? আমার নাম বুলি। জায়গার নাম? বুজিবান। বুজিরবান্ধে কি হয়েছে, একটা মানুষ বাড়িতে পড়েছিল, তো ইনি বাড়িতে কাজ করে ইনি খবর দিল, ওনার বাড়িতেও খবর দিয়েছিল, তো ওনার বোন এসেছিল, দেখে পরে পালিয়ে গেছে। তো আমাদের যত পাড়ার ছেলে আছে, 2টা পাড়া মিলে বললো হয়েছে কী হয়েছে না হয়েছে, মারা গেছে কি না, কত ভয়ে খুলছে না। তো বড়োবাবুকে ফোন করলাম, মেজবাবুকে ফোন করার পর মার্শাল এলো, মার্শাল আসার পর তালা ভাঙে পড়ে মানুষটা দেখলো বাঁচে আছে, তো মানুষটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অজিত মজুমদার। এই জায়গাটার নাম বুজিরবান্ধ শিব মন্দির। আমার নাম মিতুল কেওয়াল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMOH डॉक्टर अश्वनी कुमार माझी, आसनसोल के महकमा शासक A पांजा, WBCS अधिकारी एवं अल्पसंख्यक विभाग के पश्चिम बर्धमान की प्रमुख मालविका एवं जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी को स्मृति चिन्ह देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMOH डॉक्टर अश्वनी कुमार माझी, आसनसोल के महकमा शासक A पांजा, WBCS अधिकारी एवं अल्पसंख्यक विभाग के पश्चिम बर्धमान की प्रमुख मालविका एवं जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी को स्मृति चिन्ह देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष दलजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में सभी वर्ग के लोगों ने लोगों की मदद की है। वह सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य किए हैं, इसलिए उनका हौसला अफजाई करने का काम सुरक्षा संस्था की तरफ से किया जा रहा है। सुरक्षा संस्था की तरफ से भी निरंतर सेवा के कई कार्य किए गए हैं। संस्था की तरफ से बलजीत सिंह बग्गा ने सभी अतिथियों को उत्तरी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया।
CMOH डॉक्टर अश्वनी कुमार माझी ने कहा कि कोरोना की तीसरी फेज की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। किसी भी प्रकार का खतरा से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। वहीं वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को वैक्सीन सुचारू रूप से देने का काम चल रहा है। थोड़े दिनों बाद लोगों को और भी आसानी से वैक्सीन देने का कार्य किया जाएगा। आसनसोल के HDO A पांजा ने कहा कि इस महामारी में सभी लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। लोगों की मदद के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी काफी सराहनीय एवं सेवा के कार्य किए हैं। WBCS अधिकारी मालविका ने कहा कि वैश्विक महामारी लोगों ने काफी समझदारी से कार्य किया है। इसी प्रकार अभी और कुछ समय तक सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग लोग अवश्य करें। जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी ने कहा कि सुरक्षा संस्था की तरफ से निरंतर सभी वर्ग के लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। यह काफी सराहनीय कार्य है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है फॉर माइनॉरिटीज और उनकी स्पेशली उन्होंने कोविड टाइम में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उनको मैं उनके फ्यूचर में उनके काम के लिए बहुत मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी ताकि वो ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। और अगर कोई भी समस्या रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़ उनके सामने आए तो प्रशासन हमेशा उनके साथ रहेगी, उनकी सहायता करेगी। रक्षा एंड पॉसिबिलिटी ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है फॉर माइनॉरिटीज़ और उनकी स्पेशली उन्होंने कोविड टाइम में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उनको मैं उनके फ्यूचर में उनके काम के लिए बहुत मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी ताकि वो ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। और अगर कोई भी समस्या रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़ उनके सामने आए तो प्रशासन हमेशा उनके साथ रहेगी, उनकी सहायता के लिए। बहुत धन्यवाद मेरे को सम्मानित करने के लिए। रक्षा संस्था मेरे हमको सम्मानित किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। देखिए कि ये जो हम महामारी चल रहा है ना, ये बहुत एक इमरजेंसी का सिचुएशन। एक तरफ मनुष्य जाति और एक तरफ वायरस, हम लोग ये युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल पब्लिक, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सभी का, ठीक है। तो इसीलिए आप जो कर रहे हैं ना सुरक्षा संस्था, ये इस तरह आप जो काम किया पहली बार भी, इस बार भी, ठीक है। तो मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक स्वास्थ्य की जिला स्वास्थ्य की हेड की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह हम लोगों को काम करना आपसे मेरा गुजारिश है, निवेदन है। इस तरह हम एक साथ मिल के जनगण के लिए काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज़। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की काजोड़ा एरिया शाखा की ओर से बक्ता नगर बाबुईसोल गांव में जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य पदार्थ और जरूरत का सामान वितरित किया गया। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की काजोड़ा एरिया शाखा की ओर से बक्ता नगर बाबुईसोल गांव में जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य पदार्थ और जरूरतमंद का सामान वितरित किया गया। इस दौरान कोविड-19 का भी ख्याल रखते हुए सभी कोविड नियमों का पालन किया गया। यहाँ आए सभी परिवारों का कोरोना वायरस की बचाव के लिए जांच किया गया और सभी के हाथों में सैनिटाइजर भी दिया गया ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इस दौरान मौजूद रही काजोड़ा एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष राज्यश्री राय ने बताया कि डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा जी के मार्गदर्शन से पूरे ईसीएल के क्षेत्रीय शाखाओं की ओर से यह सामाजिक कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत काजोड़ा एरिया शाखा की ओर से बाबुईसोल गांव में 55 जरूरतमंद परिवारों को चावल, दाल, साबुन, मास्क, वर्षा से बचने के लिए छाता और त्रिपाल भी दिया गया ताकि कोरोना संक्रमण के कारण देश में एक भी जरूरतमंद परिवार भूखा ना रहे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए जगह जगह खाद्य पदार्थ वितरित किया गया। आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य कोरोना संक्रमण के दौरान किए जाएंगे। इस कार्य में काजोड़ा एरिया शाखा के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। अध्यक्षा माननीय श्रीमती पूनम मिश्रा महोदया, उनके दिशा निर्देश पे हम यहाँ पे सारी गरीब बहनों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। और साथ में हमारा ये संदेश है कि सब लोग थोड़ा वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें
और तीसरी लहर ना आए उसके लिए प्रिकॉशन लें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपनी बारी आने पे टीकाकरण जरूर करवाएं। आज पर कितने महिलाओं को दे रहे हैं? कितनों को? इसमें है चावल, दाल, नमक, आलू, छतरी और आपका त्रिपाल भी। बरसात के हिसाब से छतरी और त्रिपाल भी दिया गया है। इस तरह का कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेंगे? हाँ, हमेशा ये चलता आ रहा है। हमारे ECL की जितनी भी शाखाएं हैं 14 है, सबकी तरफ में ये हमेशा हर महीने ये किया जाता है सामाजिक कार्य। और हमारी अध्यक्षा महोदया का यही प्रण था कि कोई भी परिवार भूखा न सोए। जैसे आपको 1.5 साल से हम लोग कोविड की महामारी से गुजर रहे हैं, तो बहुतों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम हर परिवार तक कम से कम ज़रूरत के हिसाब से सामान पहुंचा पाएँ। कुछ खाद्य सामग्री और कुछ मौसम के हिसाब से चीज़ें, जैसे अभी बरसात है तो आपका छतरी और आपका ये दिया जा रहा है त्रिपाल, और जाड़े में हम लोग कंबल वगैरह ये सब देते हैं। और ये हम लोग काजोरा शाखा की अध्यक्षा, विसर्गढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल काजोरा शाखा की अध्यक्षा। नाम आपका? जी, नाम आपका? राजश्री राय। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज़। बारजोड़ा विधानसभा के तृणमूल विधायक आलोक मुखर्जी अपने इलाके की उन्नति की कई योजनाओं को लेकर जिला शासक के पास पहुंचे। उन्होंने इलाके की कई समस्याओं से जिला शासक को अवगत करवाया। बारजोड़ा विधानसभा के तृणमूल विधायक आलोक मुखर्जी अपने इलाके की उन्नति की योजना को लेकर जिला शासक के पास पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से जिला शासक से उन्नति को लेकर बात चल रही थी, जहां आज उनके सामने समस्या रखी गई। इस दौरान आलोक मुखर्जी के साथ आशुतोष मुखर्जी भी मौजूद थे। जिला शासक ने समस्याओं को सुनने के बाद जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। CSC, AFC, RIDF, PUP फंड सहित 17 अंचल में उन्नति की मांग पर एक ज्ञापन सौंपा गया। विधानसभा चुनाव चलने के दौरान स्थानीय लोगों ने कंक्रीट रोड, ड्रेनेज गार्ड, वॉल, कलवर्ट, दास ऑडिटोरियम, ओपन स्टेज, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की मांग की थी, जिसे पूरा करने के लिए जिला के पास ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ MLA फंड से एयर कंडीशन ऑक्सीजन युक्त 3 एम्बुलेंस बरजोड़ा, बेलियातोड़ और अमरकानन अस्पताल के लिए दिया गया है। इसके अलावा बरजोड़ा, बेलियातोड़ और गंगा जलघाटी थाना के लिए शव वाहन भी दिए गए। আমি বাঁকুড়া ডিএম ম্যাডামের কাছে আজকে এসেছি। বরজোড়া 253 বিধানসভা মানুষের কিছু ভোটের আগে আমাকে অভিযোগ করেছিলেন, সেই অভিযোগগুলো জানাতে এলাম এবং দরখাস্ত করলাম যে এগুলো দ্রুত রূপায়ণ করুন। মানুষকে কথা দিয়ে এসেছি, মানুষ হচ্ছে দেবতা, মানুষ হচ্ছে ভগবান, তাদের সম্মান রাখার দায়িত্ব আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারে বারে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে। যেমন সাব রেজিস্ট্রার আমাদের বরজোড়া এলাকায় দিঘাটি, শালদোড়া, বাঁকুড়া, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত যেতে হয়। সপ্তাহে 3 দিন যদি বরজোড়াতে করা হয় সাব রেজিস্ট্রার, মানুষ উপকৃত হয়। এই আবেদনটা আমি ডিএম ম্যাডামের কাছে জানালাম। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PB न्यूज़। उच्च माध्यमिक परीक्षा फल को लेकर असंतुष्ट दुमानी कालजोड़ा बालिका विद्यालय की छात्राएं आंदोलन पर उतर आई हैं। इस बार कोरोना की वजह से परीक्षा न होने के बावजूद भी बहुत से परीक्षार्थियों के फेल कर दिया गया है, जिससे अभिभावक सहित परीक्षार्थियों में गुस्सा है। उच्च माध्यमिक परीक्षा फल को लेकर असंतुष्ट दोमानी कालीजोड़ा बालिका विद्यालय की छात्राएं आंदोलन पर उतर आई हैं। इस बार कोरोना की वजह से परीक्षा न होने के बावजूद भी बहुत से परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया है, जिससे अभिभावक सहित परीक्षार्थियों में गुस्सा है। स्कूल प्रबंधन के साथ बार बार बात किए जाने के बावजूद भी जब कोई हल नहीं निकला, तब मंगलवार सुबह छात्राओं और अभिभावकों ने दुमानी से आसनसोल जाने वाले रास्ते को जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना की खबर लगते ही बाराबनी पुलिस ब्लॉक बीडीओ सुरजीत घोष घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की खबर लगते ही बाराबनी पुलिस ब्लॉक बीडीओ सुरजीत घोष घटनास्थल पहुंचे और आंदोलन कर रही छात्राओं को आश्वासन दिया कि 30 तारीख के अंदर उनकी समस्या का हल जरूर निकलेगा।
आंदोलन कर रही एक छात्रा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन क्या सोचकर उन लोगों को फेल कर रही है। माध्यमिक और क्लास 11 की परीक्षा फल बहुत विद्यार्थियों का खराब हो सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन्हें उच्च माध्यमिक में बिना परीक्षा लिए फेल किया जाए। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।